एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। Today we are back again with a new video where we are going to discuss that which is a better career option for a girl after 10+2, either NEET or MNS. Which one is better to opt? Before proceeding, I want to give you few informations. If you are new to the channel, then don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. If you are an MNS aspirant and preparing for your MNS examination for the year 2021, then you can join our online or offline batches. Online batch is already running and offline batch is going to be started from the next week. You will get our number on your screens. इसके अलावा you can follow us on Instagram, Telegram and Facebook also. So now we are going to discuss that what is the difference between NEET and MNS. Which one is better? A girl with biology subject in her 10+2 can easily opt both the options, either MNS or NEET. So which one is better? We should opt NEET or MNS. After qualifying the NEET examination, you are going to become a doctor. But after qualifying the MNS examination, you are going to become an MNS officer. NEET is completely different. Here, you have to serve the patients with your medical degree, with your medical knowledge. You are a professional doctor then. But MNS, you will be a nursing officer there and you have to serve the patients and you have to serve our nations by serving the patients. So both the options, both the opportunities are completely different. NEET is also a very good option and MNS is also. This is up to you that whether you are willing to become a doctor or a nursing officer, whether you want to take that stethoscope on your shoulders or you want those two shining stars on your shoulders. The decision should be yours, because after qualifying NEET examination, you will be having your own stethoscope and you will be treating the patients. But after qualifying the MNS examination, you will serve our nation starting with the rank of lieutenant, those two shining stars on your shoulders. So both the jobs, both the career opportunities are completely different and both are वेरी फैसिनेटिंग. दोनों ही एक बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, दोनों ही बहुत अच्छी आपको एक सिक्योर लाइफ दे सकते हैं. नीट एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है अपनी ZBC पे कंसंट्रेट करना, PCB पे कंसंट्रेट करना. ZBC स्टैंड्स फॉर जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री एंड PCB स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ये सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट. नीट के प्रिपरेशन के बाद आप इजीली किसी भी मेडिकल कॉलेज में यूजी का कोर्स यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स ज्वाइन करके 5-5.5 साल इंटर्नशिप में लाके जो भी साल आपको लगता है कंप्लीट करके आप एक डॉक्टर की तरह अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो विद योर ओन स्टेथोस्कोप. इसके अलावा यूजी करने के बाद आप फर्दर पीजी कर सकते हो, MD MS की तैयारी कर सकते हो और एक कंप्लीट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हो. नीट के थ्रू आप AFMC पुणे ज्वाइन कर सकते हो, जहां यू विल बी ऑफर्ड टू सर्व एज अ डॉक्टर फॉर दोज पेशेंट्स हु आर देयर इन कमांड हॉस्पिटल्स. AFMC पुणे का ऑप्शन भी आपको नीट देता है, यानी अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है नीट में तो आप AFMC पुणे भी ऑप्ट कर सकते हो और एज अ डॉक्टर भी अपने नेशन को सर्व कर सकते हो. इसके साथ ही साथ MNS के लिए सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं. आपको इंग्लिश और अपनी GK दोनों ही सब्जेक्ट्स पर इक्वली काम करना पड़ता है और इक्वली प्रिपेयर करना पड़ता है. इसके साथ साथ आपको अपने साइंस सब्जेक्ट यानी
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बेसिकली बायोलॉजी को भी ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करना पड़ता है और इक्वली फोकस उन पर करना पड़ता है। आप जैसे ही अपना एमएनएस क्वालिफाई करते हो, एमएनएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, आपको बीएससी नर्सिंग ऑफ़र की जाती है बाय द इंडियन आर्मी। आप अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करते हो, ट्रेनिंग पीरियड अपना कंप्लीट करते हो, देन यू आर ऑफर्ड शॉर्ट सर्विस कमीशन विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। इसके बाद आपको हर प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करते करते आपको परमानेंट सर्विस कमीशन भी ऑफ़र की जा सकती है। लेफ्टिनेंट से ज्वाइन करने के बाद आपका प्रमोशन मेजर जनरल रैंक तक का होता है। बहुत सारे पर्क्स हैं एमएनएस के भी। आपको वहाँ की ऑफिसर्स, मेस, यू विल बी एन नर्सिंग ऑफिसर देयर। शोल्डर्स पे आपके वो शाइनिंग स्टार्स, वो यूनिफॉर्म, उसका जो चार्म है वो कहीं और नहीं। साथ ही साथ अगर आप चार्म की बात करते हो तो वाइट एप्रन अलॉन्ग विद स्टेथोस्कोप, इसका जो चार्म है जो आपको नीट क्वालिफाई करने के बाद मिलता है वो अलग। यूनिफॉर्म का चार्म, डिसिप्लिन लाइफ का चार्म वो अलग। अगर आपके मन में एक पैट्रियटिज्म की भावना है, आप एक पैट्रियट हो, आप अपने देश को सर्व करना चाहते हो, नेशन को सर्व करना चाहते हो, तो आप दोनों ही करियर ऑप्शंस के साथ सर्व कर सकते हो, चाहे नीट हो चाहे एमएनएस। नीट के थ्रू भी आप एक डॉक्टर बनते हो, जहां पेशेंट्स को ट्रीट करके आप इनडायरेक्टली अपने देश की सेवा करते हो। एमएनएस के थ्रू आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, जहां आप उन पेशेंट्स को सर्व करते हो जो ऑलरेडी हमारे नेशन को सर्व कर रहे होते हैं। यानी आप उन सोल्जर्स और उनकी फैमिली को सर्व करते हो जो हमारे बॉर्डर पे हमारे लिए 24/7 तैनात हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमें ज़िंदगी देते हैं। दोनों ही करियर ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। फिर कुछ लड़कियों के दिमाग में आता है कि क्या आर्मी एज अ गर्ल आपको सिक्योर लाइफ देती है? अगर आपके दिमाग में स्टिल कोई डाउट था कि आर्मी और दिस बैकग्राउंड इज़ नॉट गुड फॉर गर्ल्स, तो ये सारे मिथ्स, सारे डाउट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सारे मिथ्स हैं, इनमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। आर्मी इज़ इक्वली सिक्योर्ड फॉर गर्ल्स। जितना वहाँ पे बॉयज़ को जैसे ट्रीट किया जाता है, सेम रैंक के साथ गर्ल्स को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है। जेंडर बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं होता है। तो आर्मी इज़ इक्वली सिक्योर्ड फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। इसके साथ साथ आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ मिलती है। आप एक ऑफिसर का चार्म, ऑफिसर की लाइफ एंजॉय करते हो। इसके साथ ही साथ बाकी जो आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो आपको आर्मी के थ्रू दी जाती हैं वो भी मिलता है आपको, और आप एक अच्छी सैलरी भी एंजॉय करते हो। ये सारे पर्क्स हैं आपके एमएनएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो आपको मिलते हैं। सो नाउ you have to decide that which is more fascinating for you, that white apron with your own stethoscope or that uniform with 2 shining stars। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आई कैचिंग ज़्यादा कौन सा लगता है। कभी कभी बच्चों को कुछ ऐसी गर्ल्स होती हैं जो हमारी फिज़िक्स में थोड़ा लैक कर जाती हैं, लेकिन उनका इंग्लिश और स्टैटिक जी के पोर्शन अच्छा होता है। फिज़िक्स में वो न्यूमेरिकल वाइज लैक कर जाती हैं, केमिस्ट्री में वो रिएक्शन वाइज लैक कर जाती हैं। तो ऐसी गर्ल्स जिनका समहाउ नीट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, उन्हें अपने करियर के लिए डिसहार्टेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमएनएस उनको एक बेस्ट करियर ऑप्शन के तौर पर प्रेजेंट उनके लिए मौजूद है। अगर आपने कुछ समय ट्राई कर लिया है और नीट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो अब आपको एक चांस एमएनएस को भी देना चाहिए और एमएनएस की तरफ भी फोकस करना चाहिए। बहुत अच्छा और सिक्योर्ड करियर ऑप्शन आपके लिए एमएनएस भी साबित हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे कई प्रयास करते हैं नीट के लिए, दे हैव अटेम्प्टेड सो मेनी टाइम्स बट दे आर नॉट सक्सेसफुल।
कई बार दे लिया, नहीं सक्सेस मिल रही है, डिसहार्टेंड हो गए, डिप्रेशन में चले गए कि अब तो नहीं हुआ, अब करियर में क्या करेंगे, ऐसी लड़कियों के लिए, उनके लिए MNS एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आप स्टैटिक जीके के पोर्शन को, साथ ही साथ अपने जो इंग्लिश का पोर्शन है उसको आप इम्प्रूव करके एक बहुत अच्छी तरीके से अपना एक करियर स्टेबल कर सकते हो आर्मी में। साथ ही साथ आर्मी है, नेशन को सर्व करते ही करते हो, आपको एक डिसिप्लिन लाइफ भी मिलती है और आप एक ऑफिसर्स के सारे पर्क्स एंजॉय करते हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नीट and MNS. I hope this video is clear to everybody. If you like the video, then don't forget to hit the like button and share the video. We are waiting for your valuable comments in the comment section. Thank you everybody for watching this video. Thank you so much everyone.